My lovely students, welcome to Methodological. Let us start the session. And in each question, pause the video, try to solve the question yourself first, and then watch the solution. So, first question, the auto fare in Manikpur is calculated using a process that takes meter reading into account. The meter reading is rounded up to the next higher multiple of 4. For instance, if the meter reading is 35 paisa, it is rounded up to 36 paisa. ठीक है, meter reading is rounded up to next higher multiple of 4. Then resultant value is multiplied by 12 and the result obtained is rounded up to the nearest multiple of 25 paise. If this result comes out to be x rupees, जो भी वैल्यू आएगा, तो फाइनल फेयर विल बी रुपीज 4x plus y, where y is the integer closest to x. If 27 paise is the meter reading, then what is the final fare of the ride? सिंपल प्रोसेस है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ढंग से पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है स्ट्रेट अवे कि हमारा मीटर रीडिंग क्या है, 27 पैसा इज द मीटर रीडिंग. मीटर रीडिंग इज सेइंग 27 पैसा. सो फर्स्ट स्टेप इज राउंडिंग अप टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ 4. सो 4 का मल्टीपल विल बी 28 पैसा. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. 28 पैसा विल बी द वैल्यू. ओके, then resultant value, which is 28 paisa, is multiplied by 12. So 28 paisa into 12, this will be equal to 28 into 20, so 280, 28 into 12, 28 into 10, 280 plus 56, 336 paisa. Okay, and this is rounded up to the nearest multiple of 25 paisa. Now very important, रीडिंग द लैंग्वेज, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 25 पैसा. ये नहीं कह रहा नेक्स्ट मल्टीपल, पहले वाले केस में कहा था नेक्स्ट हायर मल्टीपल, बट इन द सेकंड सिनेरियो दिस इज सेइंग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 25 पैसा. तो 326 पैसा से दो मल्टीपल्स हमारे क्लोज हैं. वन इज 325 पैसा, द अदर इज 350. बट नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट इज 325 पैसा, सो दिस विल बी चोजन. 325 पैसा विल बी चोजन. And this result comes out to be x rupees, so this is equal to basically 3.25 rupees. 325 paisa यानी कि 3.25 rupees, and this is equal to x. So our fare will be 4x plus y. Fare will be 4x plus y. Where x is 3.25, so 4 into 3.25 plus y, and y is the integer closest to x. So x is 3.25, तो y क्या होगा? y is the integer that is closest to x. Again, not integer that is larger to x. ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर जो सबसे छोटा हो, सबसे क्लोजेस्ट टू, बट एनी इंटीजर दैट इज क्लोजेस्ट. तो आंसर विल बी 3. y will be equal to 3 and not 4. So this will be 13 plus 3, which is 16 rupees. Option B will be the answer. सो सिंपल क्वेश्चन, बस लैंग्वेज हमें अटेंटिवली पढ़ना था और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस AB has 8 points on it and other line CD has 7 points. M distinct triangles can be formed using these points as vertices. If one particular point on the line AB must always be chosen as a vertex of the triangle, then n distinct triangles can be formed. So we have to find out value of m plus n. First condition में m होंगे number of triangles when we have to choose 3 points basically to form a triangle. 8 points are on line AB and 7 points are on line CD. तो हमारा ट्रायंगल बनाने का कंडीशन क्या होता है? कब कब ट्रायंगल बन जाएगा? सो ट्रायंगल कभी भी बनेगा हमेशा इफ यू हैव 3 पॉइंट्स एज लॉन्ग एज दोस 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन. सो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 3 points should not be collinear. टू पॉइंट्स तो देखो हमेशा ही कोलिनियर होंगे. 3 points should not be collinear. ओके, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे हमारे? m will be equal to, we have to choose basically 3 points from these 8 points and these 7 points in total. ठीक है, सो वन वे कुड बी 8 plus 7 टोटल पॉइंट्स हो गए 15. 15 में से कोई भी 3 पॉइंट्स चूज कर लो, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 15 से 3.
and then subtract those cases when the 3 points are collinear. यानी कि if all 3 points are lying on the line AB, बेस हो जाएंगे 8C3, all 3 points chosen from the 8 points, उसको subtract करना पड़ेगा. Similarly when all 3 points are lying on line CD, बेस हो जाएंगे 7C3, उसको भी subtract करना पड़ेगा. 15C3 minus 8C3 minus 7C3, this will be our answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगा? दिस विल बी 15 into 14 into 13 डिवाइड बाई 3 into 2 माइनस 8C3 विल बी 8 into 7 into 6 by 6, तो 8 into 7 56 और 7C3 विल बी 35. और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3 से बचा 5, 2 से बचा 7 और 5 into 91, 91 into 5 455 माइनस 56 एंड 35 कितना हुआ? That is also 91. So this is 364. M is equal to 364. This is one way to calculate it. Second way क्या हो सकता था कि we could have chosen, ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, तो we could have chosen 2 points on AB and 1 point on CD. ट्रायंगल फॉर्म हो जाता. और we could have chosen 1 point on AB and 2 points on CD, तब भी ट्रायंगल फॉर्म हो जाता. तो इस तरह से दो केसेस ले लिए होते और कोई थर्ड केस तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि M will be equal to 2 points on AB, AB में पॉइंट्स है 8, तो 8C2 into 7C1, 1 point on CD plus 8C1, 1 point on AB multiplied by 7C2, 2 points on CD. So this will be 8 into 7 by 2, 28 into 7. 7C1 is 7 plus 8C1 is 8 और 7C2 will be 7 into 6 by 2, so 21. सो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा? 7 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 भी आ रहा है, तो 7 into 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 7 plus 3 2 is 6, तो 7 into 4 into 13 which will be 7 into 52 which is 364. सो किसी भी एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे. क्या है पार्ट क्लियर है? एम की वैल्यू तो आ गई, दैट इज 364. एंड इफ एम इज इक्वल टू 364, सो एन की वैल्यू भी कुछ ना कुछ तो होगी. ठीक है, तो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा फॉर श्योर. ओके, सो एन का वैल्यू क्या आएगा? एन की वैल्यू तब मिलेगी हमें व्हेन वी हैव टू कंसीडर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन ए बी विच मस्ट ऑलवेज बी चोजन एज अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, सो एक पॉइंट तो हमने कर लिया, वन पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, नॉट वन पॉइंट विच इज एनी पॉइंट, नो नो नो, वन पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, सो इफ देयर आर टोटल 8 पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी, लेट अस से दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज ऑलवेज चोजन. सो यानी कि एक पॉइंट तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, वी हैव टू सेलेक्ट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल. ठीक है, वी हैव टू सेलेक्ट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल. वन पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, बिना कॉम्पिटिशन के ही सिलेक्शन हो गया इसका. ठीक है, और अब बचे हैं हमारे पास टोटल 14 पॉइंट्स, 7 ऑन ए बी एंड 7 ऑन सी डी. सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? वन वे कुड बी दैट वी कैन सेलेक्ट 1 पॉइंट ऑन ए बी, 1 पॉइंट ऑन सी डी, तो एन विल बी इक्वल टू 1 point on AB 7C1, 1 point on CD 7C1, or 2 points on CD, both points on CD, which will be 7C2. अब क्या दो पॉइंट्स जो बचे हैं उनको ए बी पे ले लोगे तो बन जाएगा ट्रायंगल? नहीं बन पाएगा, बिकॉज ऑल 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. तो यही दो केसेस बनने वाले हैं. सो दिस विल बी 7C1 into 7C1 which is 49 plus 7C2 यानी 7 into 6 by 2 21, टोटल आ गया 70. M is 364, N is 70, आंसर आ जाएगा हमारा 434. ठीक है, 364 प्लस 70, आंसर भी 434. इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A rural child specialist has to determine the weight of 5 children of different ages. He knows from his past experience that each of the children would weigh less than 30 kg and each of them would have different weights. So weight is 30 kg for all of them, less than 30 kg for all of them, and each of them had different weights. Unfortunately, the scale available in the village can measure weight only over 30 kg. अब क्या करें, सबका वेट 30 kg से लेस है और विलेज में जो स्केल अवेलेबल है दैट स्केल ओनली वेज वेट्स ओवर 30 kg. So doctor decides to do a जुगाड़ and decides to weigh the children in pairs. However, his new assistant weighed the children without noting down the names. तो नाम वाम नोट नहीं किया, बस वेट्स नोट कर लिया. तो टोटल 5 चिल्ड्रन थे.
और पेयर्स में सेलेक्ट किया है तो 5C2 वेज होंगे टोटल, यानी कि 10 वेज होंगे वेट मेजर करने के। भाई 5 में से 2 को सेलेक्ट करोगे कितने तरीके होंगे, टोटल 10 वेज होंगे 5C2, ठीक है, सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 5। तो टोटल 10 वेट्स का वैल्यू गिवन है 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47। सो वेट ऑफ द लाइटेस्ट चाइल्ड क्या होगा, वेट ऑफ द लाइटेस्ट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस से द वेट्स आर A, B, C, D एंड E फॉर 5 चिल्ड्रन, और ऑर्डर भी हमारा है, A इज लाइटेस्ट, देन B, देन C, देन D, देन E. So E is heaviest, A is lightest. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? सो अगर दो के पेयर में हमने सबको कैलकुलेट किया है, अल्टीमेटली अगर हम इफ वी ऐड ऑल दीज 10 वैल्यूज तो हमें कितना क्या वैल्यू मिलेगा? इफ वी ऐड ऑल दीज 10 वैल्यूज, देखो 5C2 से हमने सबके पेयर बनाए हैं, ठीक है। सो एक बंदे का कितनी बार पेयर बना होगा, एक बच्चे का कितनी बार पेयर बना होगा? ए का पेयर एक बार बना होगा बी के साथ में, एक बार बना होगा सी के साथ में, एक बार बना होगा डी के साथ में, और एक बार बना होगा ई के साथ में। सो फॉर ईच चिल्ड्रन देयर विल बी टोटल 4 पेयर्स, isn't it so? So if we add all these values, we will be getting total sum which will be 4 times of A plus B plus C plus D plus E. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज इन टोटल एवरी चाइल्ड, ठीक है, वुड हैव बीन काउंटेड इन 4 पेयर्स, isn't it so? बिकॉज टोटल 5 है तो n-1 पेयर्स में काउंट होगा, बिकॉज बाकी सबके साथ काउंट होगा एक एक बार। इज दैट क्लियर? टोटल सम आ जाएगा 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। क्या वैल्यू आएगा टोटल सम? अब निकालेंगे कैसे टोटल वैल्यू? तो टोटल सम निकालने के लिए विल बी डूइंग अगेन अ जुगाड़, विद जुगाड़ विल बी कि एक वैल्यू का एवरेज अज्यूम कर लो, ठीक है, 35, 36 सारी वैल्यूज का एवरेज हमने मान लिया लेटर से 40 है, और फिर डेविएशन देख लेंगे। तो अगर 40 हमारा एवरेज है, टोटल 10 वैल्यूज आर देयर, तो 40 इंटू 10 विल बी सम इफ एवरेज इज 40, ठीक है, प्लस डेविएशन देख लेते हैं। सो 35 इज 5 लेस देन 40, 36 इज 4 लेस देन 37, 3 लेस देन 1 लेस 41, 1 हाइयर, प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 एंड प्लस 7। नाउ -5 से +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 और 3 7, -7 से +7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा +2 + 6, यानी कि +8 इज एक्स्ट्रा, तो 408 विल बी द सम। सो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कम्स आउट टू बी 408/4 विच इज इक्वल टू 102। क्या ये इक्वेशन क्लियर है? Sum of weights of all children will be equal to 102. Okay. Additionally, 35 is the weight of the 2 lightest children, because सबसे कम सम कब आएगा? जबकि both the children are the lightest, isn't it so? तो ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा? When the children are A and B, the lightest ones. तो A plus B, this will be equal to 35. Similarly, heaviest weight combination will be when the 2 heavy weights will be selected, यानी D and E. तो D plus E, this will be equal to 47. A plus B आ गया 35, D plus E आ गया 47. So sum of ABDE will be equal to 35 plus 47, that will be 82. And if ABDE is 82 और ABCDE का सम है 102, तो C का वेट आ जाएगा इक्वल टू 20 kg. वेट ऑफ C is 20 kg. लाइटेस्ट का तो ऑब्वियसली वेट 20 नहीं है, तो डेफिनेटली 20 इज नॉट द आंसर. अब हम बट ए का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देखो, 2 लाइटेस्ट जो हमारे थे ए और बी, उनका सम था 35. नेक्स्ट वैल्यू 36 कैसे ऑब्टेन किया होगा? 36 इज जस्ट नेक्स्ट वैल्यू, तो ए प्लस सी का वेट होगा ये, isn't it so? द लाइटेस्ट वन प्लस द मिडिल वन, बिकॉज बी को तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए प्लस बी 35 था, तो ए प्लस सी विल बी 36. इज दिस पार्ट क्लियर? बिकॉज इफ दिस इज क्लियर कि ए प्लस सी इज 36, C is 20, तो A will be equal to 16 kg. A will be equal to 16 kg. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 16 kg will be the weight of the lightest child. Is that clear? ठीक है, okay. 16 kg will be the weight of the lightest child. Okay. नाउ एक बार बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं. देखो, A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, C इज लेस देन D, D इज लेस देन E. सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं A B C D का इंडिविजुअली. सो वी नो लाइटेस्ट सम आएगा हमारा, स्मॉलेस्ट सम आएगा व्हेन वी आर एडिंग वेट्स ऑफ A एंड B. तो A प्लस B इज इक्वल टू 35. मैक्सिमम सम विल बी देयर व्हेन वी आर एडिंग वेट्स ऑफ D एंड D. तो D प्लस E विल बी इक्वल टू 47.
नाउ सेकंड स्मॉलेस्ट सम आएगा व्हेन वी आर एडिंग ए एंड सी एंड नॉट बी एंड सी, बिकॉज बी एंड सी को ऐड करोगे तो ए से ज्यादा वेट है बी का, तो बी प्लस सी विल बी हायर देन ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी, तो ए प्लस सी विल बी लेस देन बी प्लस सी फॉर श्योर। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू मिलेगा हमें, सेकंड स्मॉलेस्ट वन 36 विल बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 36। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ 37 वैल्यू कब होगा? वेदर दिस विल बी फॉर बी प्लस सी और ए प्लस डी। क्या ये एग्जैक्टली हम डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि वेदर 37 इज द वेट फॉर बी प्लस सी और ए प्लस डी, ये फाइनली सॉल्व करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कंक्लूड नहीं कर सकते, 35 और 36 यानी कि स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए तो कंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, बट बी प्लस सी और ए प्लस डी में से 37 किसका सम होगा ये हम फॉर श्योर नहीं कह सकते। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए क्या क्या चीजें हम डिटरमाइन कर पाएंगे, क्या क्या डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा, बट यहाँ पे अभी हम एक्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 37 वेट बी प्लस सी का होगा या फिर ए प्लस डी का होगा। क्या क्लियर है? ठीक है, ओके। अब सेकंड थिंग इज 47 वेट आया था डी प्लस सी का, 46 किसका आएगा? फॉर सी प्लस सी, बिकॉज सी प्लस डी का वेट डेफिनेटली विल बी लेसर देन सी प्लस ई का वेट, इजंट इट सो? तो सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस उल्टा क्यों कर रहे हैं, हाँ सी प्लस ई तो बोला, तो सी प्लस ई का वेट आएगा इक्वल टू 46। ओके, एंड हमने ऑलरेडी सी का वेट 20 kg निकाल लिया था टोटल सम करके, तो सी इज इक्वल 20 आ ही गया था, सी इज इक्वल 20 आ गया, तो ए इज इक्वल 16 आ गया, ए इज इक्वल 16 आ गया, ए प्लस बी 35 है, तो बी इज इक्वल 19 आ गया। एंड इफ सी इज 20, सी प्लस ई इज 46, तो ई विल बी इक्वल टू 27, सॉरी ई विल इक्वल 26, सी 20 है, ई विल बी 26 और डी विल बी 21। सारी वैल्यूज मिल गई। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ 2024 हॉकी लीग ए बी सी एंड डी टुगेदर स्कोर्ड सम गोल्स। कितने गोल्स किए नहीं पता, बट आउट ऑफ दीज 27 गोल्स वर नॉट स्कोर्ड बाय ए, नॉट स्कोर्ड बाय ए। ठीक है, सो इन टोटल ए बी सी डी के गोल्स की वैल्यू हमें दिया है, और क्वेश्चन इज सेइंग दैट आउट ऑफ हुज गोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी, आउट ऑफ दीज 27 गोल्स वर नॉट स्कोर्ड बाय ए, यानी कि बी सी डी ने मिलकर कितने गोल्स किए होंगे? 27 गोल्स स्कोर्ड बाय बी सी एंड डी, दैट टोटल इज 27। Similarly, 22 goals were not scored by B, यानी कि A plus C plus D, that is 22. 20 goals were not scored by C, तो A plus B plus D is 20. And 18 goals were not scored by D, so A plus B plus C is 18. सम कर दो सारी वैल्यूज का, so A is coming thrice, B is coming thrice, C is thrice and D is thrice, because यहाँ भी वही सेम सिनेरियो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 3 times of A plus B plus C plus D, this is equal to 20 plus 40 60 87, and hence A plus B plus C plus D is coming out to be 29. This sum is 29. Okay, question is how many goals did D score? तो A plus B plus C है 18, A plus B plus C plus D है 29, तो goals scored by D will be 11. 11 will be the answer. ठीक है, goal scored by A will be equal to 2, scored by B will be equal to 7, scored by C will be equal to 9 and by D is equal to 11. क्वेश्चन में D के लिए पूछा था तो ऑप्शन D will be the answer. Okay, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Amar, Bhuvan, Chetan and Dinesh are 4 friends. Amar has M marbles with him. He gives Bhuvan 1 less than half the number of marbles he has. Then he gives Chetan 1 less than half the remaining number of marbles he has. Finally, Amar gives Dinesh 1 less than half the remaining number of marbles he has and is left with 4 marbles. So which of the following best describes the value of M? M का वैल्यू क्या होगा, किस रेंज में लाई करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अल्टीमेटली कितने मार्बल्स बचे हैं अमर के पास में? 4 मार्बल्स आर लेफ्ट, एंड एवरी टाइम ही इज गिविंग एवरीवन 1 मार्बल लेस देन हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ, हाफ द
remaining number of marbles. ठीक है, 1 marble less than half the number of marbles and he is left with 4 marbles in total. So let us say before the distribution, if in some case he has total 2n marbles, so half of 2n will be n. ठीक है, so he should be giving n marbles but he is giving 1 less than half the remaining, यानी कि he is giving basically n minus 1 marbles and left with n plus 1 marbles, giving n minus 1 and left with n plus 1. और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन 2n मार्बल्स थे. ठीक है, वैल्यू हमें किसका गिवन है? द मार्बल्स दैट ही इज लेफ्ट विद 4 वैल्यू गिवन है फाइनली. सो n प्लस 1 का वैल्यू गिवन है लास्ट स्टेप पे. एंड इफ 4 इज n प्लस 1 तो यहां से n कितना आ जाएगा? n विल बी इक्वल टू 3. एंड इफ n इज 3, 2n विल बी 6. यानी कि मार्बल्स विद हिम बिफोर गिविंग टू दिनेश विल बी 6. बिफोर गिविंग टू दिनेश विल बी 6. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि बचे हुए मार्बल्स हैं n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, तो 2n हमने एक सिस्टम बना लिया अपना. ठीक है, हर एक स्टेप पे चलते जाएंगे. क्या ये क्लियर है? 6 वैल्यू आ गया. अब 6 मार्बल्स आर मार्बल्स रिमेनिंग विद हिम आफ्टर गिविंग टू चेतन, यानी कि मार्बल्स लेफ्ट विद हिम आफ्टर गिविंग टू चेतन विच इज इक्वल टू 6. अब इस 6 को यहां से n प्लस 1 पर ले आओ. सो n प्लस 1 इज द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद अमर विच इज इक्वल टू 6. अगर n प्लस 1 6 है, n विल बी इक्वल टू 5. एंड इफ n इज 5, 2n विल बी इक्वल टू 10. So now 10 is the value before giving to Chetan. अब यही जो 10 हमारा 2n है, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए n प्लस 1 हो जाएगा. So n plus 1 is 10, n will be equal to 9, तो 2n will be equal to 18 and 18 will be number of marbles before giving to Bhuvan. So this is initial number of marbles. ठीक है, और हमने सिस्टम बना लिया था तो एक दो और वैल्यूज होता है, एक दो और स्टेप होते तो भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लियर है? सो आंसर आ गया हमारा 18 विच इज ग्रेटर देन 14. तो हमारा ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बिकॉज m इज इक्वल टू 18. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. In Dholakpur Public School, 232 students were enrolled in class 12th. 232 students were enrolled in class 12th. 144 students took mathematics and 119 students took biology. Total students were 232. And out of these 232, ones who enrolled for mathematics were 144. And those who enrolled for biology were 119. If m and n are the values of the largest and the smallest possible number of students that could have taken both mathematics and biology, then find the difference between m and n if it is known that at least 36 students have taken only mathematics. Okay. और देखो कंपलसरी सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑप्शनल है ये सब. कंपलसरी तो सबको लेना पड़ता है. तो मैथ 144 ने लिया, बायो 119 ने लिया है. कॉम्बिनेशन होगा कुछ केसेस में, मैथ और बायो दोनों ने लिया होगा, किसी ने. ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, दोनों में से ऑप्ट किया होगा. बोथ आर पॉसिबल. हमें क्या करना है? वी हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दोज हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. और साथ में फिर हमें एक केस में मिनिमाइज भी करना पड़ेगा. दोनों केसेस कंसीडर करने हैं. ठीक है, सो जब हमें मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज m इज द वैल्यू व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ द ऑप्शनल्स, तब क्या केस बनेगा? इफ मैक्सिमम करना है तो मैथ का हमारा हायर वैल्यू आ रहा है 144. 144 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स. So if you have to maximize both mathematics and biology, तो पूरा का पूरा बायोलॉजी को हम उठा के फिट कर दें मैथ के अंदर. ठीक है, all the students who have taken biology have also taken mathematics. This could be the best case scenario, isn't it so? So in that case, 119 students would have taken biology, which have also taken mathematics. But since total mathematics students are 144, bio वाले हो गए 119, subtract कर दो, कितना वैल्यू बचा? 144 minus 119 is 25. So 25 are those students who have taken only मैथ, क्योंकि बाकी सबको हमने बायोलॉजी दिला दी. ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया अपने वैल्यू को बोथ वाला. बट क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग एट लीस्ट 36 मस्ट हैव टेकन ओनली मैथमेटिक्स. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज 25 बच रहे हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, और हमें कम से कम 36 तो बचाने हैं. तो हम पहले इन 36 को बचाएंगे, फिर बाकी कैलकुलेशन करेंगे. मैक्सिमाइज करना है, बट इस कंडीशन को फुलफिल करके मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, सो 36 को तो ओनली मैथमेटिक्स दे देंगे. टोटल मैथ वाली जनता है 144. आउट ऑफ दीज 144 हमने पहले 36 को दे दिया ओनली मैथ.
अब जो बच गए वो सब के सब मैथ और बायो में इंक्लूड कर देंगे। 36 आर ओनली मैथमेटिक्स, तो बच गए हमारे 144 माइनस 36 108 विच हैव टेकन बोथ। सिर्फ सो बायोलॉजी ओनली वाले कितने बचेंगे? टोटल है 119, 108 वैल्यू यहां पे आ गया, सो बायो ओनली वाले नंबर हो जाएगा हमारे पास 11। बट क्वेश्चन वैल्यू पूछा है बोथ का, तो 108 विल बी वैल्यू ऑफ एम, एम इज इक्वल टू 108। ओके, एम इज इक्वल टू 108। नाउ एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन इज द वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि जितना कम से कम वैल्यू हो सके हमारा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले केस में। क्या जीरो कर सकते हैं? ठीक है, सबको हम अलग अलग कर दें, तो ऑल मैथमेटिक्स वाला सेपरेट, ऑल बायोलॉजी वाला सेपरेट। बट इफ दैट इज द केस, तो मैथ वाले हैं 144, बायोलॉजी वाले हैं 119, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 144 प्लस 119 विच इज इक्वल टू 263, which is again not possible because number of students this should be less than or equal to 232, which is not the case। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 232 है, तो उससे ज़्यादा कैसे बना दोगे? नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस बार भी हमें अगेन जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मैथ और बायोलॉजी को जितना सेपरेट हो सके उतना तो सेपरेट रखना है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी 232 ओनली, इज़न्ट इट सो? उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो मैथ में तो पक्की बात है हमारे पास 144 स्टूडेंट्स हैं, या तो मैथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लो या बायो के हिसाब से। तो मैथ 144 हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव नॉट टेकन मैथमेटिक्स शुड बी कितना बचेगा? 232 माइनस 144, दैट विल बी 56 प्लस 32 88। ठीक है, तो इन सारे के सारे 88 को बायोलॉजी दिला दो, क्योंकि हमें बोथ वाला कॉम्बिनेशन को मिनिमाइज करना है, तो बचे हुए को मैक्सिमाइज करेंगे, बचे हुए को मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि बायोलॉजी दिला दो बाकी सबको 88 को। तो अब टोटल हमारा 232 हो गया। सो नाउ इन दिस केस दिस बोथ वाला पोर्शन विल बी मिनिमम। ठीक है, चाहते तो हम बाहर भी रख सकते थे कुछ लोग, बट उस केस में ये पोर्शन हमारा बोथ वाला मिनिमम नहीं हो पाता। ठीक है, सो अब हमारा बोथ वाला पोर्शन जो है वो मिनिमम हो गया है। क्या वैल्यू आएगा? दैट विल बी 119 माइनस 88, बायो वाले टोटल माइनस 88, सो दैट विल बी इक्वल टू 31 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो n विल बी इक्वल टू 31, m is equal to 108, n will be equal to 31. So difference between m and n, that will be 77. Option E will be the answer. Difference will be 77. Okay. Because अगर तुमने ऐसा किया होता, let us say there are 10 students who have taken neither mathematics nor biology. 10 students are outside both. मैथ वाला स्टूडेंट्स आर 144। अब 10 को तुमने पहले ही बाहर कर दिया, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 222। 222 माइनस 144 विल बी नंबर हियर ओनली बायोलॉजी 224, एक सेकंड, 222 बिकॉज 10 को हमने बाहर किया है, 222 माइनस 144, सो 56 प्लस 22 76, 78 नंबर बचेगा हमारे पास यहाँ पे। और क्योंकि बायोलॉजी टोटल है 119, सो नाउ 41 विल बी हियर। तो ये वैल्यू मिनिमाइज नहीं हुआ ना, मिनिमम नहीं हुआ, नॉट द मिनिमम वैल्यू, दैट इज वाई हम बाहर कम से कम रखेंगे। व्हेन वी हैव टू मैक्सिमाइज बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो उस केस में हमें कोशिश करना है कि एक सेट को दूसरे का सबसेट ही बना दें इफ पॉसिबल। जब मिनिमाइज करना है तो हम टोटल इनकम्पेस करना है, हमें टोटल 232 स्टूडेंट्स को कोई ना कोई मैथ और बायो में से कम एक को तो एनरोल करा ही देना है, सो दैट हमारा बोथ वाला केस जो है मिनिमाइज हो सके। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLR Corporation has 4 shareholders: Pearson, Spector, Litt and Ross. The number of shares Pearson owns is 2/3 of the total number of shares owned by the other 3 shareholders combined. Similarly, Spector owns 3/7 of the total number of shares owned by the other 3 shareholders, while Litt owns 4/11 of the total number of shares owned by the other 3 shareholders. If the company distributed rupees 36 lakhs in dividends among the 4 shareholders, then how much of this amount was received by Ross? Okay, so PSLR Corporation has 4 shareholders: Pearson, Spector, Litt and Ross. And number of shares Pearson owns is 2/3 of total number of shares owned by other 3.
टोटल का 2/3 नहीं है, टोटल ऑफ अदर शेयर होल्डर्स का 2/3 है, ठीक है। सो इफ 2/3 लिखा है तो 3 इज टोटल ऑफ अदर 3 एंड 2 इज द वैल्यू फॉर पियर्सन। सो टोटल अगर हमारा 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 में से 2 किसका है, पियर्सन का है, यानी कि पियर्सन होल्ड्स 2/5 ऑफ टोटल। क्या है, क्लियर है? 2/2 + 3, बिकॉज अगर if 3 units is held by other 3, then 2 units is being held by Pearson। तो टोटल हो गया 2 + 3 5 units, out of 5 units Pearson is holding 2 units, isn't it so? तो या तो कह सकते हो कि Pearson is holding 2/5 of total, ओके, क्लियर है? So if total is 5, तो Pearson is holding 2 units as per the first info. As per the second information, Spectre is holding 3/7 of other 3. तो अगर other 3 are holding 7, Pearson is holding 3, Spectre is holding 3. टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 7 यानी कि 10। थर्ड केस, Lit is holding 4/11 of the other 3, यानी कि if others are holding 11, Lit is holding 4, टोटल 15 हो गया, 15 में से Lit is holding 4। इज दैट क्लियर? बट यहां पे सारे के सारे केसेस में वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं, 5, 10, 15। सो वैल्यूज को सेम कर दो ताकि हम चीजों को कंपेयर कर सकें। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30 बना दो सबको, 30 इज द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, मल्टीप्लाई बाई 6 फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड को 2 से। सो दिस विल बी 2 × 6, 3 × 3 एंड 4 × 2। ओके, सो वैल्यू क्या आ गया हमारा, पियर्सन, स्पेक्टर, लिट एंड रॉस का टोटल है 30। Value for Pearson is 12, that for Spectre is 9, that for Lit is 8, and for Ross will be 30 minus 12 + 9 21 + 8 29, बचा 1। तो रॉस का वैल्यू आ जाएगा 1/30। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मच ऑफ दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय रॉस, तो दैट विल बी 1/30 ऑफ 36 lakhs। सो आंसर विल बी 1/30 into 36 lakhs, which will be 1.2 lakhs। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। स्ट्रेट अवे भी लिख सकते थे कि पियर्सन को मिला है 2/5, स्पेक्टर को मिला है 3/10, 3/3 + 7 3/10, और लिट को मिला है 4/4 + 7 यानी 4/15। सो अब इन सारी की सारी वैल्यूज को इंटीजर में रेशियो लाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 30 से। सो वैल्यू आ जाएगा हमारा 12:9:8:1 बचेगा। सो आंसर विल बी 1/30 और 36 lakhs। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, set S consists of all prime numbers less than 20. If 4 numbers are chosen from set S at random, what is the probability that the product of these numbers will be greater than the product of the numbers that were not chosen? So S consists of all prime numbers that are less than 20. तो prime numbers हमारे कौन कौन से होंगे, less than 20? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Total 8 prime numbers in total which are less than 20. And 4 numbers are chosen from set S at random. So what is the probability that product of these numbers will be greater than product of the numbers that are not chosen? So if we are choosing 4 numbers, तो बचे हुए numbers भी, left out numbers भी 4 ही बचेंगे, because total are 8. Total numbers 8 हैं हमारे, and all these 8 numbers are different prime numbers. Different prime numbers हैं, isn't it so? Let us say we have chosen 2, 3, 5, 7. So product will be 2 × 3 × 5 × 7, which will definitely be less than product of remaining numbers 11, 13, 17, 19. ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम 2, 3, 5, 7 को चूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही किसी केस में 11, 13, 17, 19 को भी चूज कर सकते हैं। इफ वी विल बी चूजिंग 11, 13, 17 एंड 19, तो बचे हुए नंबर्स हमारे क्या होंगे, 2, 3, 5, 7 होंगे। एंड दिस टाइम प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर फॉर चोजन वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो एक केस आया जहां पे कि चोजन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारा लेसर होगा अगर सेम नंबर है, क्योंकि हम अगर 4 को चूज कर रहे हैं तो 4 रिजेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। और एक केस में उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि रिजेक्टेड वंस विल बी चोजन एंड चोजन वंस विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। सो एक केस में वैल्यू हमारा लेस देन आएगा, एक केस में वैल्यू ग्रेटर देन आएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग क्या होगा, 8C4,
टोटल वेज होंगे 8c4 एंड आउट ऑफ दिस 8c4 इन 8c4 बाय 2 केसेस वैल्यू विल बी ग्रेटर एंड इन 8c4 बाय 2 केसेस वैल्यू ऑफ द चोजन विल बी स्मॉलर. सो आधे केसेस में वैल्यू विल बी ग्रेटर, इन हाफ द केसेस वैल्यू विल बी स्मॉलर. तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट चोजन. तो दैट विल ऑलवेज बी 1/2. दैट विल बी 1/2. ऑप्शन सी. क्या ये समझ पा रहे हो? क्लियर है कि जो भी टोटल केसेस होंगे उनमें से हाफ केसेस में द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर, इन हाफ केसेस प्रोडक्ट विल बी स्मॉलर. बिकॉज हमेशा टोटल नंबर हमारा 8 है. अगर टोटल नंबर हमारा 8 नहीं होता तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता. बट टोटल हमारे प्राइम नंबर्स हैं 8. आउट ऑफ दीज 8 हाफ विल ऑलवेज बी चोजन. 4 को हम चूज कर रहे हैं, तो हाफ जिनको चूज कर रहे हैं या तो उनका प्रोडक्ट बड़ा होगा या फिर छोटा होगा. Isn't it so? क्या क्लियर है? और क्योंकि बचे हुए भी नंबर्स हमारे 4 ही हैं, दे आर नॉट 5 और 6 और 7 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो 4 को चूज कर रहे हो, बचे हुए नंबर्स भी 4 ही हैं. तो जो हमारे ऑलरेडी चोजन 4 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बड़ा होगा एक केस में बचे हुए नंबर से, और एक केस में इसका ऑपोजिट होगा. क्या क्लियर है? हाँ देखो, एक थर्ड केस और पॉसिबल हो सकता था कभी कि इक्वल हो जाता, बट क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, कैन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स चोजन बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट चोजन? थिंक अबाउट इट. इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखो, दैट इज ओनली पॉसिबल when for example the whole product of all 8 numbers, ठीक है, total product of all 8 numbers, if that is perfect square होता, let us say product would have been 400. so if product was 400 then 20 और 20 होता प्रोडक्ट हमारा तो इक्वल हो जाता. ठीक है, और ये कब ही होता, सिर्फ तब होता when नंबर टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स वाज परफेक्ट स्क्वायर. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमारा हो रहा है 360, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो कभी भी जब तुम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, यानी कि 2 फैक्टर्स ऑफ 360, तो दे विल डेफिनेटली नॉट बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इजंट इट सो? सो यहाँ पे कभी ब्रेक करोगे 20 और 18 हो सकते हैं एज फार एज इफ दे आर क्लोजेस्ट, बट दे आर नॉट इक्वल, अनइक्वल होंगे. सो डेफिनेटली 20 विल बी ग्रेटर देन 18 और 18 विल बी लेस देन 20, व्हिचएवर वे यू लुक एट इट. क्या ये क्लियर है? ठीक है, is this clear? Okay, next question. If x, y and z are 3 positive integers such that 100 is greater than x, x is greater than y is greater than z, z is greater than 10, so which of the following is closest to the product x, y, z? Which of the following options is closest to the product x, y, z? Well, given है x 100 is greater than x, यानी कि x is the largest number between the three, x is greater than y is greater than z, and z is greater than 10. So which of the following values of the product will be closest to the product given that is x, y, z? अब x, y, z की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बट पैटर्न तो कुछ ना कुछ फॉलो करेगा. क्वेश्चन को अदरवाइज आंसर कैसे करोगे? तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट way to answer this question? Pause the video and try to solve it. Take your time. देखो, पहले एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं. ओके, बिकॉज ऑप्शन हमें क्या गिवन है, y + 1 इंटू एक्स जेड, यानी कि y को इंक्रीज कर दिया 1 से, z + 1 इंटू एक्स वाई, x - 1 इंटू वाई जेड, y - 1 इंटू जेड एक्स, z - 1 इंटू एक्स वाई. यू चूज विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, अब देखो, लेट अस से वी हैव चोजन 3 numbers 4, 5 and 6. Okay, and since x is the largest, let us say x is 6, y is 5 and z is 4. नाउ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 10 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, पर हमने छोटी वैल्यूज ले ली. पैटर्न समझना है हमको, ठीक है, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इन दिस क्वेश्चन. ओके, x is 6, y is 5, z is 4. नाउ प्रोडक्ट विल बी 4 into 5 into 6, which will be 30 into 4, 120. हमें क्या चाहिए, दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑप्शंस शुड बी क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड. कब क्लोजेस्ट होगा? जब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफ यू आर डिक्रीजिंग द अमाउंट, तो डिक्रीज कम से कम हो. ठीक है, 120 में कम से कम डिक्रीज किया हो. अगर इंक्रीज करें तो इंक्रीज भी कम से कम हो, तभी तो क्लोजेस्ट होगा, तभी तो क्लोजेस्ट होगा.
सो इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, लेट्स से z में हम 1 सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 90। 90 वैल्यू आ रहा है जब हमने z में 1 सब्ट्रैक्ट किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू में 1 सब्ट्रैक्ट किया। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम x, सो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 इंटू 5 विच विल बी 100 विच इज मोर क्लोजर टू 120। अगर हम y में 1 सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू क्या आता 4 इंटू 4 इंटू 6, सो दैट इज 96। सो क्लोजेस्ट वैल्यू कब आ रहा है व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, बिकॉज एज सच प्रपोर्शन में देखो तो प्रपोर्शन में सबसे कम डिक्रीज कब आएगा, तब आएगा जब वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, बिकॉज कंपैरिजन में 6 के कंपैरिजन 1 छोटा है एज कंपैरिजन टू 4 के कंपैरिजन में, isn't it so? तो ऐसे प्रोपोर्शनल डिक्रीज कब आएगा कम, व्हेन द नंबर दैट वी आर चूजिंग टू सब्ट्रैक्ट 1 इज द लार्जेस्ट नंबर। सो दैट इज व्हाई x minus 1 into yz, in this case this value is greater than y minus 1 into xz which is greater than z minus 1 into xy। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओ, मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है जबकि सबसे छोटी वैल्यू हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, एंड x minus 1 yz is definitely lesser than xyz बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, बट दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर। क्या ये क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? बिकॉज बेसिकली x minus 1 into yz क्या है, दिस इज x yz minus yz माइनस yz। तो yz हमारा क्योंकि बोथ आर स्मॉलेस्ट, तो जो हम प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें दैट इज स्मॉलेस्ट in this case, and when we are subtracting last case में x y z minus x y, so x is all the largest value for फिर y second largest है, so यहाँ पे जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करें that is largest and that is why product will be smallest। क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, सो अब ये बात समझ में आता है, तो जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि एक्स वाई जेड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड माइनस स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा व्हेन बोथ वैल्यूज आर स्मॉलेस्ट, यानी एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड। Isn't it so? ठीक है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कब आएगा? बेसिकली दिस इज x minus 1 into yz। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू कब आएगा जब हम सबसे छोटी वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि z minus 1 into xy, यानी कि x y z माइनस एक्स वाई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और मिडिल वैल्यू आएगा हमारा विच विल बी y minus 1 into xz, यानी कि एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्या क्लियर है? क्लोजेस्ट वैल्यू विल बी x minus 1 into yz। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब ये तो बात होगी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे तब स्टोरी क्या बनेगा, तब भी लॉजिक यही होगा। जब ऐड कर रहे हैं सबसे कम जहां पे ऐड करेंगे वहां पे वैल्यू हमारा क्लोजेस्ट होगा, वहां पे वैल्यू क्लोजेस्ट होगा। सो एक्स वाई जेड विल बी लेस देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड, सबसे छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दिस विल बी लेस देन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, एंड दिस विल बी लेस देन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। सो एक्स प्लस 1 into वाई जेड विल बी क्लोजेस्ट, सेम लॉजिक। ठीक है, बट वो ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन ही हमारा क्लियरली आंसर है, x minus 1 into yz इज विल बी क्लोजेस्ट। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा y plus 1 into xz, एंड देन नेक्स्ट विल बी z plus 1 into xy। ठीक है, समझने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज एक बार समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। ठीक है, आवर पर्पस शुड बी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कब हम ऐड करेंगे, जबकि वील बी एडिंग y into z और सब्ट्रैक्टिंग y into z। Isn't it so? तो yz को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्लोजेस्ट आएगा, या yz को ऐड करोगे तब वैल्यू क्लोजेस्ट आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ mod of x square plus 1 is less than equal to 1, then find the value of x plus 2 into x plus 1 into x minus 1 into x minus 2 till 500 terms। क्या प्रोडक्ट आएगा हमारा? सो mod of x square plus 1, this is less than equal to 1, and x square will always be positive,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये वैल्यू तुम 1 में ऐड करोगे, अगर तुम 1 में ऐड कर रहे हो और तब भी तुम्हारा मॉड इज कमिंग आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 1, तो कैसे पॉसिबल है? इवन इफ यू आर टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, so mod of 1 plus 1 will be equal to 2, which is not less than equal to 1. The only case when this will be possible is when x square is equal to 0. Because mod of 0 plus 1, this is equal to 1, which is less than equal to 1. Basically equal to 1 है, less than तो कभी भी नहीं होगा, but equal to 1 हो जाएगा. So the only solution for this question is, this expression is x equal to 0. X must be equal to 0. No other solution can be there. And if x has to be equal to 0, तो प्रोडक्ट हमारा x plus 2 into x plus 1 into x, x आ ही रहा है, तो पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाएगा. Option C will be the answer. The product will always be equal to 0. Okay. Clear है? ठीक है. Next question. What is the remainder if 40 to the power 41 minus 41 to the power 40 is divided by 7? 40 to the power 41 minus 41 to the power 40, and this is being divided by 7. So what will be the remainder? क्या रिमाइंडर आएगा? So 41 is basically 42 minus 1. In any such question हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? 7 के मल्टीपल से 1 लेस या मोर की वैल्यू के पास पहुंच जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी. ठीक है. So 41 is 42 minus 1. So we can write 41 as 42 minus 1. 40 को क्या लिख सकते हैं? 35 plus 5 है. 35 plus 5 है, तो this will be converted into 35 plus 5 to the power 41. तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 5 to the power 41 minus 41 is 42 minus 1 to the power 40. रिमाइंडर बचेगा minus 1 to the power 40. So 5 to the power 41 minus 1 to the power 40. This is being divided by 7. और -1 to the power इवन है तो रिजल्ट हमारा +1 आएगा. अगर -1 to the power ऑड होता तो रिजल्ट आता हमारा -1. सिंस पावर इवन है तो रिजल्ट +1 आएगा, बट इससे पहले माइनस है, वो ध्यान रखना है. और 5 to the power 41, 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब is 125, which is 126 minus 1. 18 7 is 126. 126 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल से 1 छोटा होगा, 5 क्यूब. तो वी कैन राइट 5 to the power 41 as 5 स्क्वायर इंटू 5 to the power 39. और 5 to the power 39 को लिख सकते हैं 5 क्यूब to the power 13. 5 क्यूब इज 125, यानी कि 126 minus 1 to the power 13 minus 1. 126 minus 1 to the power 13, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? -1 to the power 13, पावर ऑड है तो -1 रिमाइंडर होगा. तो 5 स्क्वायर इंटू -1 यानी कि 25 इंटू -1 -26 -1, एक सेकंड, -26 नहीं -25 होगा. -25 -1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा -26. अब चाहे तो 7 का मल्टीपल इसमें ऐड कर दो, या बचेगा रिमाइंडर हमारा -5 अल्टीमेटली. -5 रिमाइंडर है, रिमाइंडर निगेटिव तो होगा नहीं, तो एक बार 7 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा +2. ऑप्शन ई विल बी द आंसर. +2 विल बी द रिमाइंडर. क्लियर है? ठीक है. इज दिस पार्ट क्लियर? अदरवाइज टोशेंट को यूज करके भी क्वेश्चन को छोटा कर सकते थे. टोशेंट क्या होगा 7 का? 7 इज अ प्राइम नंबर. टोशेंट ऑफ 7 विल बी 7 - 1 which is equal to 6. Okay, so any number that is co-prime with 7, ठीक है, any number if a is co-prime to 7 and a to the power 6, रिमाइंडर क्या देगा हमें? 1 देगा. as long as highest common factor of a and 7 is equal to 1, a is co-prime to 7. ठीक है. so 40 is co-prime to 7, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 40 to the power 41 है, और पावर 41 हमारा 6 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचने वाला है? 40 to the power 41 कैन बी रिटन एज 40 to the power 36 plus 5 माइनस 41 वाला केस तो सिंपल ही है, 42 - 1 to the power 40. ठीक है. सो 40 to the power 36 तो रिमाइंडर 1 देगा हमको स्ट्रेट अवे इफ वी आर डिवाइडिंग इट बाय 7, बिकॉज 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. so this is basically 40 to the power 6 to the power 6. रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा इस केस में. बचा हुआ हमारा फैक्टर बचा 40 to the power 5, तो उसका कंसर्न है हमारा 40 to the power 35 which will be 35 plus 5 to the power 5
minus minus 1 to the power 40, which becomes 5 to the power 5 minus 1 का रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, और 5 to the power 5 हमारा क्या बच जाएगा, दिस विल बी 3125 minus 1, तो 3124 डिवाइड बाई 7 क्या होगा रिमाइंडर, 7 4 28, 32, 44, 42 चला गया, रिमाइंडर बचेगा +2, सो आंसर विल बी +2। तो टोशन को यूज करके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, या अदरवाइज फर्स्ट मेथड भी इक्वली एफिशिएंट है। क्या है पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी मैंने डिस्कस किया है वो समझ में आएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू hit the like button as well, and if you've not already subscribed to the channel then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT or join the Telegram or WhatsApp channel Mathological. अच्छा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना to check the playlist of all the PYQ videos of decision making and additionally quantitative aptitude. Okay, that's all in this session. Bye bye, take care and keep learning.